Bismillahirrahmanirrahim. This is the lecture B of today's proceedings of week number 13, and we were talking about local site effects and building codes. So far, the local site effects are already discussed, and we are talking about the building codes. Those are actually kind of blue book for the construction industry. So we talked about the purpose of the building codes and why those are important. This is what we talked about before. So there are three kind of situations. Those are very important under those conditions. If a structure is designed and constructed as per the guidelines, then it should resist the minimum level of earthquake without damage, and a moderate level earthquake without structural damage, and possibly experience some non-structural damage. And then if a major earthquake struck in that particular area, then it should have the tendency to withstand, or you can say that it should not collapse at that particular level of earthquake. So these are the things, those are very important to design structures. So building codes are really important, and we are talking about uniform building codes. The first edition of these codes were published in 1927, and it continued until 1997, and then the international building codes, those were implemented all over the world. And so the uniform building codes have two basic approaches. Number one approach is the static approach, and the other approach is the dynamic approach. So first of all, we will talk about the static approach, in which the effects of ground motions are represented by static lateral force, and a dynamic approach in which ground motion is characterized by a design response spectrum. So we already talked about response spectrum. So the simpler static approach is allowed only for certain conditions of geometric, regulatory, occupancy, and height. So first of all, we will talk about the static approach. And as per the static approach, there are the different components, those we need to know. So this is a very simplified stepwise procedure. By following that, we can design a structure as per this approach. So first of all, we actually compute the lateral shear force. So here V is equal to base shear. This is what we actually determine by using a formula. We will talk about it very soon. Then Z is the seismic zone factor. It means in which area your site is lying. So what is the zone factor of that particular area? The third one is importance factor. Importance factor means what type of your structure is, the sensitivity of the structure. So what is the purpose of the building of that particular structure, right? Then there is another parameter that is called as RW, ductility coefficient. So ductility coefficient is a kind of coefficient that actually define the plasticity and brittleness of the materials, right? C is the seismic dead load. So what is the seismic dead load? It is a kind of load that is gonna be affected during an earthquake. And that is also a part of, you can say, the structure. So mainly the structural load is called as seismic dead load, but it has some other manifestations we will talk about very soon. S is the soil coefficient, right?
So these are the important parameters those we need to know. And now you might be thinking that what are those, what is the formula or where we are going to use these parameters. So here is the formula to compute the base shear force. So as per the static force, this is the formula that is being used to find out the base shear force. You can say you can also say that it's a kind of lateral force. How the building is being shaken in the horizontal direction, right? So the total design base here is in a given direction, the structure must be able to resist it in any direction is given by this formula, right? So now, so we talk about Z. So what is the Z factor? Z is the seismic zone factor. This is what we talked about. So now, first of all, we need to know the value of Z. So let's go to the map. Do you see this map? I mean, here you have the zones. You see here, this is the map of United States. We have different zones 0, 1, 2A, 2B, 3, and 4. And these have these values. For the United States, we have these values as Z factor. That is actually called as zone factor. I mean, in which zone your area is lying. And how these zones are prepared? These are prepared on the basis of the seismic hazard, right? So these zones are prepared on the basis of seismic hazard. Like we also have seismic hazard zoning maps for Pakistan. Those were also discussed in the previous lectures as well, right? So we also have these kind of seismic zones, and we need to assign the particular Z factor to those particular zones with respect to Pakistan, right? All right. So we are getting this Z from this kind of map, right? Where let's suppose we have structure over here, right? So it means we have two A zones. So we can get the value from here, right? This is state of Missouri where I used to live in US. All right. So other one is I. I is called as importance factor. So we have table 8.3 for it. So how we are going to get, you know, when we are going to design a structure, so it means we already know that what is the type of structure and why we are going to construct it, right? So it means we already know the things. So we just need to plug in the values. What kind of values we are going to take as per this guideline, right? So it is the I is the importance factor, the second one in the numerator. So this is the table 8.3 to find out the importance factor. So essential facilities, hazardous facilities, special occupancy structures, standard occupancy structures, miscellaneous structures. So they have further explanation about these structures like A, B, C, D, and E. So first of all, essential facilities includes hospitals and other medical facilities having the surgery and emergency treatment areas, fire and police stations, tanks or other structures containing housing, supporting water or fire suppression materials, right? So these are the kind of things. I mean, further detail is given over here. So these are the type of structure. Those are under the essential facilities definition, right? So if the overstructure fall in these kind of definitions, then we are having the value 1.25 for the this factor, right? Similarly, we have hazardous facilities. For hazardous facilities like nuclear repositories or some other kind of storage places or some industry or chemical industry where the hazardous materials are being used like
detonators, explosives. So these things come in this category, and over there we can have a kind of 1.25 same factor, right? Then we have special occupancy structures where we can take the value of 1, right? So special occupancy structures में क्या आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो, जैसे फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, बिल्डिंग है, तो स्कूल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एट अ टाइम पढ़ते हैं, जाते हैं, काम करते हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स है उन्हें कहते हैं स्पेशल ऑक्यूपेंसी स्ट्रक्चर्स। So occupancies with a capacity of greater than 300% buildings for schools through secondary or daycare centers, capacity greater than 250 students, occupancy used for colleges or adult education schools, right? Capacity greater than 500. So similarly, there are some other kind of facilities. Those come under this category. So we have one value. Similarly, standard occupancy structures, we have one value, and miscellaneous structures, right? So these kind of structures have their own values. So it means whatever we are going to construct, we already know its type, its usage, and its application. All right. So this is how we can get the value of I. We are talking about how we can calculate the base shear strength, right? So then we have value factor C. What is C value? What is C factor? Uh, then he is talking about RW. Let's go to the C. This is C factor. C is equal to 1.25 into S divided by T2 by 3. So C coefficient has further another formula that is going to use to compute the C value. All right. So for C value, equation 8.2, in equation 8.2, S is a soil coefficient, right? Table is given 8.5, and T is the fundamental period of the structure in seconds. ठीक है, अगर आपके पास S की वैल्यू है, T की वैल्यू है, then you can find out the value of C. So the C value of C need not exceed 2.75, and the minimum value of C or RW आई गेस के आगे मैंने उसको यहाँ पे उसका टेक्स्ट जो है वो, हाँ ठीक है। सो अंडर मोस्ट कंडीशन इज 0.75, ठीक हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि डिस्कस क्या कर रहे हैं अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सी वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो इसमें जो डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि सी का क्योंकि फर्दर आगे फार्मूला है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है आर डब्ल्यू। तो लेट्स सी कि आर डब्ल्यू को पहले डिस्कस करते हैं। आर डब्ल्यू इज आ, इट इज एक्चुअली डक्टिलिटी फैक्टर, ठीक है, is a numerical coefficient that reflects the ductility of the structure. तो ductility of the structure जो है वो 8.4 में given है, table 8.4. So this is the table 8.4, ठीक है। ductility it means कि मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रेंथ है, उससे रिलेटेड ये कोएफिशिएंट है, जो कि हम मटेरियल की टाइप जो हम यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। So we have basic structure system. Structure system भी हमने थोड़े से डिस्कस किए थे कि structural components of the building और उनकी mitigation, और उसके बाद non structural components of the building and its mitigation, ठीक है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो स्ट्रक्चर्स है लाइक बेरिंग वॉल सिस्टम, बेरिंग वॉल सिस्टम जो है इसका मतलब ये कि जो आपके स्ट्रक्चर की जो वॉल्स हैं वो बियर करती हैं लोड को, ठीक है। बेरिंग वॉल सिस्टम में जैसे आपके पास है लाइट फ्रेम्ड walls with shear panels, ठीक है, लाइट फ्रेम्ड वॉल्स विद shear panels, ठीक है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो आपने उसमें दो टाइप है, वुडन स्ट्रक्चर है पैनल,
उसके लिए आपने RW8 लेना है। ऑल अदर लाइट फ्रेम स्ट्रक्चर जैसे एल्यूमिनियम है, मेटल स्ट्रक्चर्स हैं, उसके लिए आपने वैल्यू लेनी है 6, ठीक है। उसके बाद शेयर वॉल्स अगर आपके पास हैं, शेयर वॉल्स थोड़ी हैवी होती हैं तो लाइट फ्रेम नहीं होती, जैसे कंक्रीट की है, मैसनरी है, उसमें भी आपने वैल्यू उसकी 6 ले लेनी है, ठीक है। लाइट स्टील फ्रेम, जैसे कि इसमें लाइट स्टील में थिन शीट्स यूज होती हैं स्टील की, bearing wall with tension only, bracing based frame where bracing carries gravity loads। अब इसमें फर्दर डेफिनेशन है इसकी, स्टील, कंक्रीट, हैवी टिम्बर, तो ये आपने उसके अकॉर्डिंगली ये उनकी वैल्यूज लेनी है। उसके बाद है बिल्डिंग फ्रेम सिस्टम। बिल्डिंग फ्रेम सिस्टम का ये कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा है जिसका पूरा एक स्केलेटन खड़ा हो जाता है, जैसे कि बड़े स्ट्रक्चर्स आप जब बनाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि बीम्स और जो आपके पास जो पिलर्स हैं उसकी फॉर्म में आप स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, उसके बाद उसके दरमियान में फिर वॉल्स और बाकी फिलिंग करते हैं डिफरेंट मटेरियल की, राइट। उस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको आप कहते हैं बिल्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर। ये कंक्रीट के भी हो सकते हैं, ये वुडन भी हो सकते हैं, और ये आपके जो हैं वो स्टील के भी हो सकते हैं, राइट। उनके लिए आप देखेंगे वैल्यूज डिफरेंट है यहाँ पे। स्टील सेंट्रिकली ब्रेस्ड फ्रेम, लाइट फ्रेम वॉल्स विद शेयर पैनल्स, इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं। उसके लिए उसकी वैल्यू 10 है। उसके बाद आपके पास फर्दर जो आपके पास है लाइट ये स्टील सेंट्रिकली ब्रेस्ड फ्रेम 10 वैल्यू। उसके बाद आपके पास वुड स्ट्रक्चरल पैनल है 9 वैल्यू है। ऑल अदर लाइट फ्रेम स्ट्रक्चर 7 वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आपका शेयर वॉल्स आ जाती हैं। शेयर वॉल्स अगर आप उसके अंदर देते हैं कंक्रीट मैसनरी तो ये भी वैल्यूज इनकी 8 है। फिर ऑर्डिनरी ब्रेस्ड फ्रेम्स हैं, उसमें स्टील, कंक्रीट, हैवी, ये सारी चीज़ें आपने डिफाइन करनी होती है कि आप क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम जो होती है स्पेशली जो डायनामिक मूवमेंट्स हैं उनको रोकने के लिए, बिल्डिंग को जो है ना वो एज अ यूनिट मूव करवाने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है वो जो है क्या कहते हैं कि इसको यहाँ पे फिर ये इसका स्पेशल डिज़ाइन होता है। इसमें वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, जैसे आपके पास 12, क्योंकि आपने ज़्यादा रेजिस्टेंस दे दी है उसके अंदर, तो ऑल राइट। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, आप उसको देख लें। और इसके कुछ कंपोनेंट्स तो हमने बिल्डिंग के जो हमने स्टडी किए हुए हैं, और कुछ यहाँ पे और गिवन है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हमने इसकी नहीं जाना क्योंकि वी आर नॉट लाइक स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपके जो स्ट्रक्चर है उसका बेसिक डिज़ाइन क्या है, और डिज़ाइन क्योंकि आप लोगों ने करना नहीं है तो आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि किस किस्म के स्ट्रक्चर में आपने किस तरह से बिल्डिंग कोड्स को यूज़ करके उसकी शीयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ड्यूअल सिस्टम स्ट्रक्चर का, ड्यूअल सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास फ्रेम भी लोड लेता है और वॉल्स भी लोड लेती है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड भी आपके पास ये सारी डिफरेंट टाइप के लिए आपके पास मैसनरी, कंक्रीट, स्टील, वुडन, सब के लिए यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, ठीक है। ये आप यहाँ से जो है वो RW जो फैक्टर है आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। नाउ यू गॉट जस्ट टू फैक्ट। अब इसमें आपके पास Z डिफाइन कर लिया है, I डिफाइन कर लिया, RW डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपके पास है C और W। तो लेट्स टेक फर्स्ट दी W। W इज द साइज्मिक डेड लोड, ठीक है, विच इंक्लूड्स परमानेंट इक्विपमेंट, जो आपका परमानेंट इक्विपमेंट उसके अंदर पड़ा हुआ है बिल्डिंग में उसका लोड, एंड पोर्शंस ऑफ लाइव लोड्स, portions of live loads, partition loads, and snow loads. These are a kind of ये है आपके पास dead loads। कि आपके पास जैसे कि परमानेंट इक्विपमेंट है उसका लोड कितना है, उसके बाद पोर्शन ऑफ लाइव लोड। लाइव लोड्स क्या होते हैं कि जो वेरी करते हैं। लाइव लोड्स में आपके पास मतलब एक वक्त में अगर वहाँ पे बंदे 20 होते हैं, दूसरे वक्त में वहाँ पे 50 होते हैं, कभी 100 हो जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, या इस तरह से मतलब जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये लाइव लोड होता है जो वेरी करता है। पार्टीशन लोड उसमें आ जाता है, ठीक है, जो आपने इंटरनल पार्टीशन की हुई है। उसके बाद आपने स्नो, स्नो जो है वो भी डेड लोड में आता है कि जब हो सकता है बाज़ दफ़ा आपकी छत पे जो है वो स्नो पड़ी हो, तो ये भी एक काइंड ऑफ डेड लोड है जो कि एडिशनली अप्लाई करता है और हो जाता है स्ट्रक्चर के ऊपर। ऑल राइट,
तो ये आपके पास W भी डिफाइन हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी C कोएफिशिएंट. So in equation 8.2, S is a soil coefficient. ठीक है. So we first of all let's go to the table 8.5. ये 8.5 है टेबल आपके पास, और यहाँ पे क्या है, सॉइल कोएफिशिएंट S. इसके वैल्यूज गिवन है कि आपकी सॉइल किस टाइप की है. फॉर एग्जांपल, इफ द सॉइल प्रोफाइल इज S1, it means a rock like material characterized by shear wave velocity greater than 25 feet per second, right? Or suitable or other suitable means of classification, right? Or medium to dense stiff or to stiff condition where the soil depth is less than 200 feet. अच्छा, जो पहली A और B कंडीशन है उसके लिए इसकी वैल्यू है 1, कि अगर मटेरियल रॉक की तरह है. बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, राइट. तो उस तरह की जो जैसे ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे सॉइल काफ़ी हार्ड होती है क्योंकि पानी नहीं होता ना वहाँ पे. तो उस तरह की जो सॉइल होती है वो रॉक की तरह एक्ट करती है, तो इसलिए वहाँ पे फिर आप इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे. मतलब ये कि इस पे इसका उसके डिज़ाइन पे कोई फ़र्क नहीं है. 1 का मतलब कोई एडिशन ना सब्ट्रैक्शन, राइट. Similarly, if you have a value S2 for a profile, तो उसमें क्या होगा, a profile with predominantly medium dense to dense or stiff to stiff soil condition where soil depth exceeds 200 feet or more. All right. So we are going to take the value 1.2 and then S3, a soil profile containing more than 200 feet of soft to medium stiff clay, but not more than 40 feet of soft clay. ठीक है. अब ये फर्दर कंडीशन है, अब ये आपके पास ज्यादा डेंजरस कंडीशन है कि सॉफ्ट क्ले आ गई है, तो आपने इसके फैक्टर की वैल्यू बढ़ा दी है. फिर उसके बाद अगर इससे भी ज़्यादा फ्रैजिल किस्म का मटेरियल है कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कम उसकी वेलोसिटी है, लूज मटेरियल है, तो उसकी वैल्यू 2 पे चली गई है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट S बेस्ड ऑन योर सॉइल प्रोफाइल. ठीक है. ये इंजीनियर्स आपको बताएंगे कि सॉइल का प्रोफाइल क्या है. All right. So the last final you can say the coefficient is C. So C जो है उसको फर्दर आप इस फार्मूला से जो है वो क्या कहते हैं उसे फाइंड आउट करेंगे, जिसमें S जो है वो आपने फाइंड कर लिया, उसको आपने डिस्कस कर लिया. नाउ T is actually the fundamental period of the structure in seconds. कि जो बिल्डिंग्स हैं उनका नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या है. ठीक है. कि हर बिल्डिंग जो है आपको पता है उसका नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन होता है, उसकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है. जब ग्राउंड मोशन जो है उसकी फ्रिक्वेंसी और बिल्डिंग की फ्रिक्वेंसी मिल जाती है तो क्या होता है, रेजोनेंस आती है. जब रेजोनेंस आती है तो क्या होता है, उससे फिर आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो ग्राउंड मोशन एम्पलीफाइड हो जाती है और स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. ठीक है. रेजोनेंस जो है वो अर्ली क्लासेस में आपने वो फिनोमिना पढ़ा होगा. ठीक है. तो दिस इज द रीजन वाई कि आपको स्ट्रक्चर जो है उनकी जो है वो उसका जो नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है वो भी पता होना चाहिए. तो नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर की हाइट के ऊपर. बेसिकली स्ट्रक्चर की हाइट और उसके मटेरियल के ऊपर. हमने इसका रफ सा फार्मूला एक डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चर. ठीक है. वो फार्मूला क्या था, T is equal to number of stories. ठीक है. number of stories of a building divided by 10. ठीक है. ये फार्मूला है इसका. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ स्टोरीज जो है वो फाइंड आउट आपको पता होती हैं, उसकी बेस के ऊपर उसको आप उसका जो नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो गैस कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप बिल्डिंग कोड्स को डिफाइन कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने गैस नहीं करना बल्कि आपने यहाँ पे फाइंड करना है बाय नोइंग दी पैरामीटर्स वैल्यू. आपने अदर पैरामीटर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है.
टी इज द फंडामेंटल पीरियड, और टी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अलहदा से फार्मूला है। अब वो फार्मूला क्या है, वो ये वाला फार्मूला, ठीक है। T इज इक्वल टू सी टी इंटू एच एन 3/4, ये अब फार्मूला है T को फाइंड आउट करने का। सो यू कैन सी दैट, सो टाइम पीरियड इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ हाइट, h जो है वो इस पे हाइट है, और सी टी जो है ये अनदर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी भी यूज होती है, ठीक हो गया। तो इसलिए आप यहाँ पे अब आपके पास जो है वो एज अ कांस्टेंट यहाँ पे आ गया है सी टी। So CT has values of 0.035 for steel moment resisting frames and 0.030 for reinforced concrete moment resisting frame and eccentrically braced steel frames, ठीक है। उसके बाद 0.02 for all other structures, ठीक होगा। अगर आपके ये स्ट्रक्चर इसकी डेफिनेशन में नहीं आते पहले दो की, तो फिर उसके लिए आपने 0.02 वैल्यू उसकी लेनी है, और उसके बाद H जो है वो उसकी बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल कम अप विद द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो है इन सेकंड आपके पास आ जाएगा, और इससे आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इससे आप क्या करते हैं, आप इससे फाइंड आउट करते हैं नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इसको स्ट्रक्चर के हवाले से आपने बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उसके बाद सी कांस्टेंट है जो मटेरियल को डिफाइन करता है, उसकी बेस के ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह से आपके पास जो है वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो आपने जो है वो आपकी बेस शीयर वाले फार्मूले में आ जाएंगी, और आप जो है वो लैटरल शीयर फोर्स जो है वो कंप्यूट कर लेंगे किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। ऑल राइट, सो इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको डिटेल में इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दूँ। ये टेक्निकल फार्मूला है, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि आपने इसमें कोई चीज़ उस तरह से कंप्यूट नहीं करनी बड़े बड़े फार्मूलाज यूज़ करके। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है जिसमें आपने स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर का पर्पज़ क्या है, स्ट्रक्चर का मटीरियल कौन सा यूज़ करना है, किस जोन में है वो, उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक अप्रोच, ठीक है। स्टैटिक अप्रोच में आप अर्थक्वेक का फैक्टर जरूर इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन उसको आप इनडायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली मीन कि आप उसमें साइज्मिक जोन कौन सा है, उसके बाद मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये वो वैल्यूज हैं जो आप डायरेक्टली आपने इसके अंदर ग्राउंड मोशन नहीं यूज की, लेकिन आपने अदर पैरामीटर जो साइज्मिक पैरामीटर्स हैं उनको यूज करके आपने जो है वो बेस शीयर फोर्स है उसको निकाल लेंगे, ठीक हो गया। ऑल राइट, सो नाउ यू गॉट, नाउ वी हैव लेफ्ट द डायनामिक अप्रोच। अब डायनामिक अप्रोच क्या है, डायनामिक अप्रोच, dynamic approach of UBC allows the response of the structure to be determined by response spectrum analysis or by time history analysis। डायनामिक अप्रोच में आप क्या करते हैं, आपके पास जब बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है किसी भी टाइम हिस्ट्री की, अर्थक्वेक की जो वहां पे जो लोडिंग है उसकी टाइम हिस्ट्री आपके पास है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। मतलब ये है आप स्ट्रक्चर का पूरा डिजाइन सिमुलेट करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसके अंदर जो मटेरियल यूज करना है वो सारी प्रॉपर्टीज को उसके अंदर इंक्लूड करके आप डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, एक सिमुलेट करते हैं कंप्यूटर में, और फिर उस पे वो जो लोड है वो आप देते हैं कि आपकी अर्थक्वेक लोडिंग जब लगेगी तो बिल्डिंग रिस्पॉन्ड कैसे करेगी। तो वो जो स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स है वो जब आएगा तो उससे आपको उसका स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन पता चलेगा, ठीक है। वो जो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन है उसकी बेस के ऊपर फिर आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं जिसमें वो सेफ रहेगा, ठीक है। अगर वो सेफ नहीं रह रहा तो फिर आपको प्रॉपर उसकी डिजाइन में थोड़ी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी और उसके डिजाइन को ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने डायनामिक अप्रोच जो है उसको यूज करना है। इसकी जो बेसिक थ्योरी है डायनामिक अप्रोच के पीछे वो आपकी जैसे साइज्मिक हैजर्ड एनालिसिस आपने यूज किया पीएसएचए को यूज करके, टेक्निक को यूज करके, उस तरह का मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा बनाते हैं, उससे स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन आता है और उसको फिर आप स्ट्रक्चर में यूज करते हैं,
तो यूबीसी की क्या कंडीशन है कि आप कौन सा जो है वो क्या कहते हैं उसे ग्राउंड मोशन लेंगे। कि आपने ये देखना है कि इन बोथ केसेस यूबीसी रिक्वायर्स दैट द डिजाइन ग्राउंड मोशन कॉरस्पॉन्ड टू 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स। कि जो भी आपने पैरामीटर यूज करना है उसको 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स जो है वो यूज करना है, कि उसके चांसेस 10% जो है वो आपके दोबारा आने के हों उस पैरामीटर के। तो उस पर कितनी प्रोबेबिलिटी उसकी बनती है 50 ईयर पीरियड। ठीक है, 50 ईयर पीरियड में तो जो आपके पास 50 ईयर के पीरियड में उसकी अगर मीन एनुअल रेट ऑफ एक्सीडेंस 10% है तो उससे रिलेटेड जो रिटर्न पीरियड आएगा वो आपका आएगा 475। ठीक है, 475 ईयर्स के अंदर अगर वो अर्थक्वेक रिटर्न होता है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 10% ऑफ प्रोबेबिलिटी उसकी एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स पीरियड, तो वो आप डिजाइन में वो जो ग्राउंड मोशन है डिफरेंट एरियाज के लिए जब आप ऐसे मैप बनाएंगे हैजर्ड मैप, तो वो फिर यूज होंगे आपके जो है वो डायनामिक अप्रोच के अंदर। ठीक है, तो डायनामिक अप्रोच जो है उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन को लेते हैं। तो अभी हमने ये चीज डिस्कस की है वहां पे अभी थोड़ी देर पहले कि डिफरेंट मटेरियल्स का जो है लोकल साइड इफेक्ट्स के हिसाब से कि डिफरेंट मटेरियल जो है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। और सबसे जो डेंजरस चीज है वो क्या है, वो सॉफ्ट सॉइल्स है, क्योंकि सॉफ्ट सॉइल्स के अंदर ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल, रॉक में तो बिल्कुल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे फिर डैमेजेस ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स फैक्टर है, ये एक्चुअली रिस्पॉन्स फैक्टर है सॉइल का। सिमिलरली हमने स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स फैक्टर है वो भी फाइंड आउट करना होता है बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी बिल्डिंग, जो मटेरियल आपने यूज किया। ठीक हो गया, तो इसके लिए भी डिजाइन चार्ट्स भी अवेलेबल है। अगर आपने रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा परफॉर्म नहीं करना तो आपके पास डिजाइन चार्ट्स भी अवेलेबल हैं जिससे आप स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब वो उसके लिए आपके पास एक डिफरेंट चार्ट्स में जैसे न्यू मार्क एंड हॉल 1882 चार्ट भी है जिसको ट्रिपल टाइट प्लॉट भी कहते हैं। ट्रिपल टाइट प्लॉट जो है वो ऑलरेडी आपका गिवन है अपेंडिक्स के अंदर, जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, वहां पे वो चार्ट गिवन है। और ये हमने जब स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन पैरामीटर्स को डिस्कस किया था तो उस वक्त हमने उसको भी डिस्कस किया था वहां पे। ठीक है, तो उसका मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ, अभी मैं बुक को खोल के ये है आपका 535। 535 पेज के ऊपर जो है ट्रिपल टाइट प्लॉट गिवन है। तो इसी प्लॉट को यूज करके आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा खुद से ड्रॉ करना है तो ये वाला चार्ट आप यूज कर सकते हैं। ये हमने उस वक्त डिस्कस किया था, अभी भी हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, कि आपने किस तरह से ड्रॉ करना है। ऑल राइट, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपके पास जो है ना, लेट्स गो टू उसके बाद आपके पास एक और जैसे आपके पास ये ग्राफ है, अब इसको आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसी ग्राफ को, इसी रिलेशनशिप्स को आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर आपने इसका डिज़ाइन के लिए यूज़ करना है तो इसमें से ये जो पीक्स वगैरह ये ख़त्म कर दें। ठीक है, आपने अगर डिज़ाइन के लिए ये वाला ग्राफ यूज़ करना है तो आप इसको जब आप इसको क्या कहते हैं उससे पीक्स को और इरेगुलरिटीज को खत्म करते हैं तो फिर आप इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। आप एक एवरेज ट्रेंड लगा देते हैं। ठीक है, कि जो पीक्स है उसको खत्म करते हैं। जैसे ये यहाँ पे पीक्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पीक्स डिफरेंट थी इस तरह से, तो वो सारे खत्म करके बम्प्स खत्म करके आप ये नॉर्मलाइज्ड ग्राफ बन गया। ठीक है, और ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइट डिपेंडेंट नॉर्मलाइज्ड रिस्पांस स्पेक्ट्रा। ठीक है, और इसमें अगर स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन और इफेक्टिव पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। ठीक है, इफेक्टिव पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, इसको दोबारा से पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। जैसे वो नंबर ऑफ साइकिल जिसमें इन्वॉल्व थे, कि थर्ड साइकिल ले लें या 3 साइकिल्स की एवरेज ले लें या फिफ्थ लार्जेस्ट साइकिल ले लें, इस तरह से इफेक्टिव पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसकी रेशियो है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। तो ये रेशियो 1 2 3 4, क्योंकि स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन जनरली ज्यादा होता है तो इसलिए क्योंकि ग्राउंड मोशन एम्पलीफाई हो जाती है, जनरली वो ज्यादा होता है 1 से, इसलिए इसकी यहाँ पे रेशियो जो है 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो क्या है, वो ड्यूरेशन है। ये जो ड्यूरेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए डिफरेंट ड्यूरेशन है।
डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो ड्यूरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पीक के अलावा। तो ये चीज़ें जो है ना, फिर इसकी ये फिर आप इसको एज अ डिज़ाइन ग्राउंड मोशन ले सकते हैं डिफरेंट सॉइल्स के लिए। आप ड्यूरेशन देंगे तो उसके हिसाब से उसकी जो ग्राउंड एम्प्लीफिकेशन है वो बढ़ जाएगी, डैमेज प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसी इसी चीज़ को फिर जो है वो आप सॉफ्टवेयर जो है वो जो डेवलप करते हैं वो इन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं कि आपने जो है जब डिज़ाइन करना है तो रॉक के लिए डिज़ाइन जो आपका आएगा उसके पैरामीटर्स वो डिफरेंट होंगे। सॉइल के ऊपर जो आपका स्ट्रक्चर जो है फाउंड करेगा, जिसकी फाउंडेशन वहाँ होगी, वो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो इस तरह के ग्राफ उसके अंदर ऑलरेडी एज अ इनपुट गिवन होते हैं। जैसे न्यू मार्क हाल है तो ये भी सॉफ्टवेयर के अंदर होगा कि आपने न्यू मार्क हाल के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ऑल राइट, सो न्यू मार्क जो हाल का जो चार्ट है वो अब नेक्स्ट ये आपके पास चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट यहाँ पे गिवन है कि आपने रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा बनाना है। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा जो है वो आप शेप उसकी ऐसे याद रखेंगे, वो इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से होके ये इस तरह करके और इस तरह से बनता है, ठीक है। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा जो होता है उसको ये एक्चुअली स्मूथ किया होता है। और आपके पास ये स्पेक्ट्रा इस तरह का है, लेट्स सपोज ऐसे करके, ठीक है। तो ये उसी को स्मूथ किया हुआ है, ये जो फॉर्म है ये इसी को स्मूथ करके बनाया हुआ है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड किया हुआ है। जैसे ये नॉर्मलाइज्ड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला जो कंपोनेंट है पहले वाला, इस तरफ अगर फ्रीक्वेंसी है, सॉरी टाइम पीरियड है, इस तरफ अगर आपका पीरियड है, तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है फ्रीक्वेंसी कम होनी शुरू होती है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो ये जो कंपोनेंट है इसको कहते हैं एक्सेलरेशन कंट्रोल। जो मिडल में आता है इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और जो एंड पे आता है इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल, वेरी लो फ्रीक्वेंसी हाई टाइम पीरियड्स, ठीक है। ये वेलोसिटी के लिए और ये है आपका एक्सेलरेशन के लिए, ठीक हो गया। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो ये स्पेक्ट्रा के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सिमिलरली वही चीज अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल देखेंगे आपके पास जो है वो ये कह रही है कि डेवलप आ न्यू मार्क हाल स्पेक्ट्रम फॉर 5% डैम्पिंग and a peak ground acceleration of 0.25 g, ठीक है। ये उसने कंडीशन दे दी, आपके पास इतना एक्सेलेरेशन है वैल्यू और इतनी स्ट्रक्चर की डैम्पिंग होगी। ये ग्राउंड मोशन है, ये आपकी क्या है, ये ग्राउंड मोशन है, डिजाइन ग्राउंड मोशन, ठीक है, एक्सेलेरेशन की फॉर्म में। लेकिन आपने बिल्डिंग में देखना है कि बिल्डिंग में जब आएगी ये ग्राउंड मोशन तो उसका स्पेक्ट्रल जो उसका रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, उसका स्पेक्ट्रल एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि आपके पास ये जो ग्राफ है इसकी फॉर्मेशन क्या है। इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये देखिए, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ठीक है, ये है पीरियड। पीरियड का क्या मतलब है, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड जो है ये किसका ऑपोजिट है, ये फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट है। T इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है, किसी भी स्ट्रक्चर का जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वो हम फाइंड आउट, अभी हमने फार्मूला भी डिस्कस किया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये गिवन है। जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस पे क्या गिवन है, वेलोसिटी, ठीक है। एक तरफ आपके पास पीरियड है और एक तरफ आपके पास वेलोसिटी है, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास दो और स्केल्स हैं। एक तो ये वाला स्केल है, ये देखिए, ये स्केल है आपका डायगोनल स्केल, ये जो इस तरफ आ रहा है, ठीक है। ये स्केल है, इसके ऊपर गिवन है डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए, ये कॉर्नर में लिखा हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है इन इंचेस, ठीक है। ये वाला डायगोनल स्केल है। जो चौथा स्केल है वो है एक्सेलरेशन के लिए, ये देखिए, जी वैल्यू के लिए, एक्सेलरेशन के लिए ये वाला स्केल इस तरफ डायगोनल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इस तरफ डायगोनल है, ये नीचे तक जाता है, ठीक है। अब ये तो चार स्केल इसके ऊपर गिवन है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक दो एक पैरामीटर
गिवन हो, हमें पता हो, तो हम बाकी पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके साथ आपने चार्ट को समझ लिया। अब आपके पास एक और इससे रिलेटेड एक टेबल है। ठीक है, ये जो टेबल बुक में गिवन है, ये उसी को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया कि जो एक तरफ आपके पास यहाँ लिखी हुई है डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, ये है आपके पास जिसे आप एस्पिलन कहते हैं, डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, डैम्पिंग रेशियो आपको पता है कि डैम्पिंग बहुत जरूरी होती है। डैम्पिंग स्ट्रक्चर में करते हैं तो ग्राउंड मोशन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए डैम्पिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो डैम्पिंग अगर 0% हो तो ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, कि ये आपके पास है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, कि अगर ग्राउंड मोशन जो है, जो इनपुट ग्राउंड मोशन जो है, उसके रिस्पांस में स्पेक्ट्रल जो पैरामीटर्स है उनकी वैल्यूज कितनी बढ़ जाएंगी, कितनी एम्प्लीफाई हो जाएंगी, उसके लिए ये फैक्टर्स जो है वो ऑलरेडी गिवन है, ये टेबल की फॉर्म में दिए गए हैं। अगर आपके पास 0% डैम्पिंग है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए 2.5 टाइम वो फैक्टर बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज कि अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियली जो प्रोड्यूस हुआ है ग्राउंड मोशन से वो 1 है, तो स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2.5। इस तरह अगर वेलोसिटी आपकी 1 है तो स्पेक्ट्रल वेलोसिटी आपकी 4 हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन है तो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन 6.4 हो जाएगा। देखेंगे ये वैल्यूज कितनी ज्यादा है अगर आपकी डैम्पिंग ना हो। जब आप डैम्पिंग इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे 2% डैम्पिंग, तो ये वाला फैक्टर जो है वो 1.8 पे आ जाता है। इसी तरह से आपका जो वेलोसिटी है ये 2.8 पे आ जाती है, एक्सेलरेशन 4.3 पे आ जाता है। तो जितनी आप डैम्पिंग इंक्रीज कर रहे हैं एम्प्लीफिकेशन कम हो रही है। जैसे 20% डैम्पिंग पे क्या हो रहा है कि बिल्कुल ही वो जो कर्व है वो आपका जो है ना, वो इनपुट जितनी इनपुट मोशन होगी स्पेक्ट्रल वैल्यू या जो आपके पास जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा आएगा स्ट्रक्चर्स का, उसमें भी उतनी ही मोशन होगी। तो ये क्योंकि जनरली क्या होता है कि एम्प्लीफिकेशन होती है ना, ग्राउंड आपका स्ट्रक्चर जो है वो ग्राउंड से ज्यादा मूव करता है। ठीक है, तो ये उसकी एम्प्लीफिकेशन है, क्योंकि स्ट्रक्चर को कन्फाइनमेंट नहीं मिलती, साइडों पे उसके एयर है। ठीक है, तो वो ज्यादा मूव करेगा, इसलिए उसकी ग्राउंड जो मोशन है, ग्राउंड मोशन जो इनपुट एज अ जो फाउंडेशन में से आती है वो एम्प्लीफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स के लिए आपके पास एक चार्ट गिवन है। अगर आपने डैम्पिंग जितनी जितनी रखनी है वही पैरामीटर लेके आपने डिजाइन पैरामीटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं किसी इनपुट ग्राउंड मोशन के ऊपर। ठीक है, अब ये चीज भी आपको समझ आ गई। अब हमारे पास जो है ना वो फार्मूला, हमारे पास जो है वो एग्जांपल क्या कहती है, डेवलप अ न्यू मार्कहाल डिजाइन स्पेक्ट्रम फॉर 5% डैम्पिंग। अब इसने कहा कि आप 5% के ऊपर उसको फाइंड आउट करें एंड अ पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन ऑफ 0.25 g। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब आपने क्या करना है, फॉर 5% डैम्पिंग द एक्सेलरेशन, velocity and displacement amplification factors are 2.6, 1.9, 1.4। ये आप यहाँ टेबल पे चले जाएं। 5% डैम्पिंग के ऊपर आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू है ये वाली, वेलोसिटी की वैल्यू ये है, ये फैक्टर्स हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब इनसे अपने टोटल वैल्यू की, जो टोटल वैल्यू है उस पर्टिकुलर पैरामीटर की वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास 5% डैम्पिंग है और उसने एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन आपको दिया है 0.25 g। ये देखिए एक्सेलरेशन जो है वो 0.25 g दिया हुआ है, ये आपका इनपुट एक्सेलरेशन है, इनपुट ग्राउंड मोशन है। अब आपने क्या करना है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, स्पेक्ट्रल वेलोसिटी फाइंड करनी है, स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ये वैल्यूज अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फार्मूला है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है कि सिंपली आपने करना क्या है कि जो आपके पास इनपुट ग्राउंड मोशन है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 2.6 से। ये टेबल आपको बता रहा है, ये देखिए ये 2.6 है, 5% डैम्पिंग, सिंपली आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास 0.65 आ जाएगा एक्सेलरेशन, ये आपके पास आ जाएगा स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन। ठीक है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब इसमें कोई कंफ्यूजन, सिंपल आपने 2.6 जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेकंड स्पेक्ट्रल वेलोसिटी, स्पेक्ट्रल वेलोसिटी फाइंड आउट करने का क्या
तरीका है, इसको इसमें भी आपका जो इनपुट ग्राउंड एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू यूज होगी। ये देखिए इनपुट ग्राउंड एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.25 जी, ये वही है, नीचे 1 है 1.00 जी, और उसके बाद ये 1.9 ये इसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, ठीक है। और उसके बाद ये एक कांस्टेंट है 48 इंच पर सेकंड जो है ना, ये कांस्टेंट है। ये जो 48 इंच पर सेकंड वेलोसिटी है, ये जब आपका एक्सेलरेशन 1 जी होगा ना, तो उसके ऊपर 48 इंच पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड आउट करनी है 0.25 के ऊपर, इसलिए ये ऊपर है ये नीचे है 1। तो ये जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 22.8 इंचेस पर सेकंड, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। उसके बाद है स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट। स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट आपका है ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर 1.4 मल्टीप्लाई बाय वही एक्सेलरेशन, और इस 1 जी एक्सेलरेशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है 36 इंचेस। ये ऑलरेडी प्रूवन चीजें हैं कि वो उन्होंने रिसर्च की बेस पे बताया कि अगर 1 जी एक्सेलरेशन हो, 1 जी एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी कितनी है 48 इंचेस पर सेकंड। और अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी क्या वैल्यू है, उसकी है 36 इंचेस, ठीक है, एक 1 जी एक्सेलरेशन के ऊपर। तो ये फार्मूला है, फार्मूले में आपने इसको प्लग इन करना है, आपने 0.25 जी के हिसाब से फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 12.6 इंचेस। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आपके एक्सेलरेशन की भी आ गई, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी भी आ गई स्पेक्ट्रल, और स्पेक्ट्रल डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली विदाउट परफॉर्मिंग दी स्पेक्ट्रल एनालिसिस, राइट। तो ये आपके पास जस्ट आप न्यूमार्क हॉल चार्ट जो है वो उसको यूज किया, इनपुट आपको उसने दे दी कि 0.025 जी का एक्सेलरेशन है, और उसका रिस्पॉन्स, उसके स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, और 5% डैम्पिंग है, ठीक हो गया। ये तो पैरामीटर्स आपने फाइंड आउट कर लिए। नाउ हाउ टू ड्रॉ दीज पैरामीटर्स ऑन दैट चार्ट। इस तरह का कोई क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी आ सकता है, और आई एम क्वाइट होपफुल कि जो आपका जो पेपर है वो ऑन कैंपस ही होगा, ठीक है। तो प्रॉबेबली कोई ना कोई, अगर अल्लाह ना करे सिचुएशन आपके ये जो पैंडेमिक की वर्स नहीं होती और कम हो जाती है, तो फिर हो सकता है कि ऑन कैंपस आपके सारे पेपर्स हों, ठीक है। तो एनी हाउ, चाहे ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चार्ट आपको दे दिया जाएगा, इस तरह का फार्मूला आपको दे दिया जाएगा, और आपने सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करनी है और आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपने ये वैल्यूज ड्रॉ कैसे करनी है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए आप ये स्टेटमेंट थोड़ी सी पढ़ लें। Newmark and Hall, for example, recommended that design response spectra be developed from a series of straight lines on a tripartite plot. ये जो आपका given है, ठीक है। All right. So Newmark-Hall design spectrum is obtained by multiplying the p ground acceleration. आपने क्या करना है, multiplying the p ground acceleration, velocity and displacement by values by factors, जो amplification factor टेबल 8.2 में उसके साथ। ऑल राइट, अब यहाँ पे कुछ कट ऑफ्स हैं। एट पीरियड्स बिलो अबाउट 0.17, frequencies above about 6 hertz, the spectral accelerations are tapered down to p ground acceleration, ठीक है। accelerations are tapered down to p ground acceleration, ठीक है, ये इसको समझने की जरूरत है। The spectral accelerations are tapered down to p ground accelerations, ठीक है। A peak ground velocity of 48 inches per second and a peak ground displacement of 31 inches are assumed to be consistent with the peak ground acceleration of 1 g। अब ये उसने दे दिया जो हमने भी यूज किया ना कि 1 g एक्सेलरेशन के ऊपर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 36 है, और जो आपके पास ग्राउंड एक्सल जो वेलोसिटी है वो 48 इंचेस पर सेकंड है। ये उसने ऑलरेडी हमें दे दी है वैल्यूज के। इस वैल्यू के ऊपर जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या वैल्यू होगी एक्सेलरेशन के अगेंस्ट, और डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज उसने दे दी हमें। तो नाउ वो कह रहा है कि आपके पास करना क्या, आपने अपनी वैल्यूज को कैसे ड्रॉ करना है।
एक उसने पीरियड का कट ऑफ दे दिया 0.17 तक आपने एक्सेलरेशन को ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर जो है जो वैल्यू, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है इसका ट्रिपरटाइट जो प्लॉट है उसका वो एक्सेलरेशन कंट्रोल्ड है। मतलब ये है कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा जो होता है जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें तीन तरह की एजेस बनते, तीन तरह के उसमें ट्रेंड्स बनते हैं, एक ये ट्रेंड बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है। पहले वाला ट्रेंड एक्सेलरेशन वाला होता है, दूसरे वाला ट्रेंड वेलोसिटी का होता है, तीसरे वाला जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का होता है, ठीक है। तो अभी हमने इसी को ड्रॉ करना है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आ जाए दोबारा, आपकी ग्राउंड, आपकी वैल्यू कितनी थी, इनपुट ग्राउंड एक्सेलरेशन कितना था 0.25 जी। तो एक्सेलरेशन का स्केल कौन सा है, ये वाला, ये एक्सेलरेशन का स्केल है। यहाँ पे वैल्यू पढ़े 0.25, ये देखिए ये पॉइंट में लिखी हुई है, यहाँ से आप सेंटर से शुरू करें, ये आपके पास 0.2 है, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। आपने क्या करना है 0.25, तो 0.25 आपका यहाँ पे आएगा तकरीबन, ठीक है। यहाँ से आप लाइन एक्सटेंड करें तो ये आपकी लाइन यहाँ आएगी, ये देखिए यहाँ पे आएगी, ये आपकी लाइन है ये वाली, ठीक है। ये आपके पास है 0.25 जी आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपकी जो वैल्यू है ये इनपुट है। उसके बाद वो कहता है कि आपने जो एक्सेलरेशन आपका टेपर करना है, अब आपने ये देखिए यहाँ से, एक तो ये था कि आप इसकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगा देते, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आप लगा देते, यहाँ से आप, क्योंकि आपका डिजाइन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है 0.065, 0.65, ये देखिए ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो एक तो इसका ये था कि आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करते, ये वाली, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करते और इसको ऐसे लगा देते। एक तो ये था कि मतलब ये आपका ये वाला एक्सेलरेशन यहाँ पे चला गया है इस वैल्यू के ऊपर, ये एम्पलीफाई हो गया ना। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने क्योंकि स्पेक्ट्रा बनाना है, टेपर स्पेक्ट्रा बनाना है, तो ये जो ब्लू सर्कल इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एक एज बन रही है, यहाँ पे एक ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसी ज्वाइंट को वो कह रहा है कि ये आपने किस तरह टेपर करना है, आपने आपने ये करना है कि 0.7, ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल एक्सल आपके पास टाइम पीरियड है इस पे 0.17 जो ये बात कर रहा है, ये वाली 0.17 के ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से ये जो लाइन है ये ऊपर जाएगी, ठीक है, ये जो मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइन आपकी ऊपर जाएगी, सॉरी ये गलत हो गई, यहाँ से ये 0.27 यहाँ से आएगी, ये वाली लाइन, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन आपकी ऊपर जाएगी, ठीक है, यहाँ से गुजरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से 0.65 की लाइन यहाँ से लगानी है, इस तरफ यहाँ से लगाई, और एक लाइन आपने यहाँ से एक्सटेंड करनी है, तो वो यहाँ पे क्रॉस कर रही है, वो जो लाइन है आपकी वो यहाँ पे आपने सॉरी पॉइंट लगा देना, ये आपका पॉइंट एक इधर से आया, इधर वाली लाइन इधर जा रही थी, इधर वाली लाइन यहाँ मिली है, तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, ये जो आपका स्केल है इसके परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर लाइनें ऐसे लगेंगी, तो आपने 0.065 की परपेंडिकुलर लाइन लगा देनी, ये जो लाइन है ये ऐसे जा रही है सीधी, ये देखिए, ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही है ना सीधी स्ट्रेट लाइन। तो उसके बाद आपने जो वेलोसिटी फाइंड आउट किया है वो है 22.8 इंच, वो आप यहाँ पे देखें ये 20 इंचीज है, तो 22 यहाँ पे आता है, तो यहाँ से आपने ये लाइन लगा दी, ये देखो ये आपने लाइन लगाई, तो ये उसी का पार्ट है, इस लाइन ने और जो ये जो है आपका पास जो एक्सेलरेशन वाली लाइन, इसने उसको यहाँ पे काटा, ये देखो यहाँ पे उसको काटा है, तो ये आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी के स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लाइन लगा दी आपने, ठीक है, ये आपने लाइन इस तरफ एक्सटेंड कर दी और ये लाइन आगे तक जा रही है, ये देखिए ये लाइन आगे तक जाएगी, सॉरी फॉर लाइन टेढ़ी मेढ़ी लग रही है यहाँ से, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर ड्रा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से ये लाइन इधर जा रही है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपने कितना फाइंड किया था, डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड आउट किया था 12.6 इंच, तो ये देखें ये 10 है, तो ये 12 की यहाँ पे लाइन है, तो यहाँ से आपने इसको ऊपर उठाना है ऐसे, ठीक है।
जब आपने ऊपर उठाया तो ये वाली लाइन यहाँ पे लगी है, ये आपके पास तीसरा पॉइंट आ गया, और ये लाइन इस तरह से ये नीचे जा रही है, ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप इस सारे को देखें तो ये आपका ग्राफ जो स्पेक्ट्रा है वो इस तरह का बन जाएगा, ये देखिए ऐसे टेपर, ये ठीक है, यहाँ तक आप ये एक का आपके पास पॉइंट आया जो 0.17 के पास था, और ये और उसके बाद ये आपके पास दूसरा आया, तो ये आपको ये इधर से ये वेलोसिटी से ड्रॉ किया, ये इस तरह से एक्सेलरेशन का आ रहा था, ठीक है, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वाला आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ट्रिपल टाइट प्लॉट यूज करके आपने, जिसे न्यूमार्क हाल डिजाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, उसकी बेस के ऊपर आपने क्या किया कि आपके पास इनपुट ग्राउंड मोशन अवेलेबल थी, तो आपने एम्पलीफिकेशन वाला टेबल यूज करके आपने क्या किया, आपने स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स उसके अगेंस्ट फाइंड आउट कर लिए। डिफरेंट डैम्पिंग्स के ऊपर आप कर सकते हैं, हमने 5% के ऊपर किया, और उसको हमने ड्रॉ कैसे किया, ड्रॉ करने के लिए आपको ये जो है क्या कहते हैं उसे, इसके ऊपर मैंने ग्राफ के ऊपर जो प्रोसीजर है वो मैंने समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ आई तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर समझ नहीं आई तो इसको दोबारा से एक्सप्लेन किया जा सकता है, या आप दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो शायद आपको दोबारा से जो समझ आ जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, सो ये थी आपकी एग्जांपल। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायनामिक अप्रोच, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोड बेस्ड अप्रोचेस में एक और अप्रोच भी है जिसे NEHRP कहते हैं। दो हमने इसमें बिल्डिंग कोड यूबीसी हमने जो है उसको डिस्कस किया है, जिसके अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास जो कोड्स हैं, जैसे यूबीसी के अंदर डायनामिक के लिए आपने प्रोसीजर है, उसके बाद स्टैटिक है, स्टैटिक में सिंपल फार्मूला था, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद जो डायनामिक कोड है उसमें आपने स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, स्पेक्ट्रल वेलोसिटी और इस तरह से बाकी पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आप ये सारे डिफरेंट एरियाज के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसकी बेस के ऊपर फिर आप पूरे कंट्री के जो है वो आप इस तरह का जो है ना वो मैप, हैजर्ड मैप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये है, ये आपके पास है स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन का मैप, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन विद अ पीरियड ऑफ 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड के ऊपर जो है वो, अगर उसकी मतलब वो जो एक्सेलरेशन जिसके टाइम पीरियड, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी, ये इसको आप 1/0.2 से डिवाइड करें तो आपके पास ये आ जाएगी मेरे ख्याल में 5 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस जो है वो 2% है इन 50 ईयर्स, 50 ईयर्स में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस है 2%, ठीक है, उसका ये हैजर्ड मैप है, ये स्पेक्ट्रल मैप है, ये स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन की बेस के ऊपर, जो कि आप बिल्डिंग कोड्स में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, यूएस के लिए। तो ये पूरा मैप आपको गिवन आ गया, देखिए ये वाला जो जो आपकी ईस्ट कोस्ट है वो ज्यादा एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे सैन एंड्रियास फॉल्ट है, और उसके अलावा ये जो एरिया जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं उसे, ट्रांसवर्स मूवमेंट हो रही है प्लेट्स की, एक्टिव एरिया, ठीक है। सिमिलरली यू हैव 1 सेकंड पीरियड, 1 सेकंड पीरियड के लिए भी आप, मतलब ये डिफरेंट पीरियड्स के लिए आप ये ग्राफ्स बना सकते हैं, स्पेक्ट्रल ग्राफ्स बना सकते हैं, आपके पास स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स आ जाएंगे। इस ये जो है NEHRP जो है इदारा, उन्होंने ये जो है वो मैप्स क्रिएट किए हैं जो कि डायरेक्टली यूज हो सकते हैं डिजाइन मोशन को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब जो आपके पास स्पेक्ट्रा को मुझे स्पेक्ट्रल ग्राउंड जो मोशन, ये आपके पास पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है और इसको आप डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जिसका पीरियड 1 सेकेंड है, और परसेंटेज इसकी वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट 2% है इन 50 ईयर्स, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से पीरियड आपने बढ़ा दिया, यहाँ पे पीरियड 0.2 सेकंड था, यहाँ पे पीरियड आपका बढ़ गया, उसके हिसाब से जो है ना वो वैल्यू जो है वो आपकी ओवरऑल कम होगी, जितना पीरियड ज्यादा होगा वैल्यू आपकी एक्सेलरेशन की कम हो जाएगी, ठीक है। पीरियड कम होगा तो पीक ज्यादा भी आ सकती है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और राइट, सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया लोकल साइड कंडीशंस, उसका इफेक्ट क्या है ग्राउंड मोशन के ऊपर। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि बिल्डिंग कोड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग कोड्स में हमने यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड जो है उसको डिस्कस किया है, उसमें डायनामिक और स्टैटिक अप्रोच डिस्कस किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया NEHRP के जो
मैप्स हैं कोड बेस्ड, वो क्या है, स्पेक्ट्रल एक्सेलेरेशन के ये डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे कि आईबीसी क्या है, इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड जो है, ये एक्चुअली मॉडिफाइड वर्जन है यूबीसी की। तो ये थोड़ा सा डिस्कस करके तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं उसे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेट्रोफिटिंग, साइज्मिक जो अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी है, और रेट्रोफिटिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स। रेट्रोफिटिंग क्या होती है कि आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जब एक अर्थक्वेक आता है तो उसमें डैमेज आ जाता है, तो उसको आप रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू दैट कि आपको मैंने कहा था कि आपने कुछ अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है, और टॉपिक्स आपने मुझसे शेयर नहीं किए। जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये चीज़ें डिफाइन नहीं करनी है, इसकी एप्लीकेशन आपने दिखानी है। आपने उससे रिलेटेड जो है कोई भी प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने आर्टिकल भी लिखना था। मैंने कहा था कि रिव्यू आर्टिकल लिखें और वो आर्टिकल की बेस के ऊपर आप प्रेजेंटेशन जो है वो बनाएं, और प्रेजेंटेशन जो है वो आप प्रेजेंट करेंगे। जिस तरह से मैंने ये रिकॉर्डिंग की है, तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके उसको आप शेयर कर सकते हैं सबके साथ। ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर होगी, और उसको जो है वो फिर हम इवेलुएट करेंगे, मैं भी इवेलुएट करूंगा, और उसको फिर आपकी 10% वेटेज है इस चीज़ की, और उसको उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपने 2 से 3 के ग्रुप में, मैंने शायद कहा था आपको, जो टर्म पेपर है आपका वो लिखना है, रिव्यू आर्टिकल लिखना है, और उसकी बेस पे प्रेजेंटेशन बनानी है। और आपने, क्योंकि अब आपको काफ़ी टॉपिक का पता चल गया हुआ है, तो इसमें आप कोई भी चीज़ जो डिजास्टर मैनेजमेंट से, अर्थक्वेक से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक नजर आता है, कोई केस हिस्ट्री आती है, ठीक है, वो उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपकी अपनी इनपुट्स होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने किसी ऑनलाइन साइट से आपने कोई प्रेजेंटेशन डाउनलोड की और उसको आपने प्रेजेंट कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, यू शुड पुट सम एफर्ट इन इट। ठीक है, तो वो ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए, और जो कि ना बाकियों के लिए भी फायदा हो, क्योंकि हमने जो कुछ थ्योरेटिकल यहाँ पे डिस्कस किया है उसकी कुछ एप्लीकेशन जो है ना वो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो 10 मिनट 12 मिनट की प्रेजेंटेशन हो सकती है, आप उससे रिकॉर्ड कर लें और शेयर कर लें, मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। और फिर उसके बाद ये है कि उसके ऊपर सबका फीडबैक भी ले लेंगे। ठीक है, तो जो फाइनल जो उसकी ग्रेडिंग होगी उसमें आप लोगों का फीडबैक भी होगा, आपके अपने फ्रेंड्स के लिए भी। ठीक है, वो एक लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें आपने टॉपिक लिखना है, उसमें आपने अपनी अपनी जो ग्रेडिंग है मुझे सबमिट कर देनी है, कि किसकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, नॉलेज कैसा था, और उससे आपने सीखा क्या है, कुछ उसकी इवेल्युएशन इस तरीके से आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इवेल्युएशन मुकम्मल कर लेनी है, फिर मेरी इवेल्युएशन उसके अंदर होगी। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है कि ये नहीं है कि क्लासेस ऑन कैंपस नहीं हो रही तो वो आपने काम नहीं करना, ये आपने प्रोजेक्ट करना है। तो अगर आपका नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट नहीं हो सकता, तो फिर हम इसको उसके नेक्स्ट वीक ले जाते हैं। ठीक है, तो आपको आज से 15 दिन मिल रहे हैं, आपने प्रेजेंटेशन पे काम करना है, आप लिटरेचर सर्च करें, आप कोई केस हिस्ट्री डिफाइन कर दें, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इस कोर्स से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। पहले मुझसे टॉपिक आप ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, एक ही टॉपिक पे सब लोग मत काम करें, डिफरेंट टॉपिक्स पे काम करें, ताकि आप जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन जो है इस कोर्स की डिफरेंट एरियाज में उसके अकॉर्डिंगली आप लर्न कर सकें। ठीक है, बिल्कुल मेरे वाली जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, ये थ्योरी इस तरह से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज सुनामी के हैजर्ड हैं, तो सुनामी से रिलेटेड आप डिस्कस कर लेंगे, उसको किस तरह से उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया, किस तरह से वो चीज़ें किसी पर्टिकुलर एरिया में इंप्लीमेंट हुई, किसी जगह पे लैंडस्लाइड्स का मसला है क्योंकि वजह से, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम, उसको किस तरह से टैकल किया। ठीक है, किसी जगह पे फ्लडिंग हो जाती है अर्थक्वेक से, सुनामी से, वो कैसे हुई। ठीक है, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, अर्थक्वेक के आफ्टर इफेक्ट्स को कैसे टैकल कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट अदर टॉपिक्स जो हैं वो आप ले सकते हैं जो इससे कोर्स कंटेंट से रिलेटेड हों। ठीक है, तो ये आपने लाजमी करना है, ये आपके कोर्स का हिस्सा है। तो अभी तक आपने, पिछली दफ़ा मैंने कमेंट किया था तो उस पर किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो अब आप अभी से सोच लें, अभी आपका 15 दिन है, नेक्स्ट वीक में आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, उससे नेक्स्ट वीक जो है आपने वो सबमिट करनी होगी। ठीक है, ऑल राइट।